Hi everyone, welcome to Digital Library. Hello viewers, this is Pratibha Suparna. Today we will study chapter number 7 of class 6th, Getting to Know Plants. This chapter is completed in 2 videos. So after watching this video, do watch video second. You'll get the link in the I button. So in this video, we'll study about different types of plants like herbs, shrubs and trees depending on their stem. Then we'll study about roots and leaves. And in video second, we'll study about flowers. If you really liked my video, then please like and share the video and do subscribe my channel Digital Library so that you don't miss any of my video. So let's begin. Getting to know plants. So in this chapter we will study about various types of plant, what we see around us. So let's begin. Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil, grass, right? तो हम बाहर निकलते हैं, wherever we go we found trees around us, है ना, पार्क में, इवन हम रोड पे भी जब जा रहे होते हैं तो रोड के दोनों साइड, इवन जो बीच में बैरियर होता है वहाँ पर भी छोटे प्लांट्स होते हैं. तो ट्रीज, प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं. बट हैव यू एवर थॉट दैट दे आर नॉट सेम? सम आर वेरी बिग, some are very small and some are just green patch, है ना. some have green leaves while some others have reddish one. होता है, कुछ की leaves green होती हैं, कुछ की reddish leaves होती हैं, कुछ के बड़े बड़े huge red flower, किसी के small flowers होते हैं. and there are many plants who don't have flowers, and there are many plants which are devoid of flowers, means they don't have flowers, they are not flowering plants. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to school, in the park and gardens, isn't it? Let's get to know the different parts of plant. ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट के वेरियस पार्ट्स, प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो ये फिगर 7.1 में आप देख पा रहे हैं, इट्स प्लांट. थोड़ा सा हमें आइडिया है. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द सोइल इज नोन एज रूट, and the above part, the part of the plant which is above the soil, above the ground, is known as shoot. So root, shoot. Then shoot has other parts also like leaves, stem, flower, fruit, है ना, इस तरीके से. So let us now go on a nature walk, make friends with many different kinds of plants and examine them closely. 7.1 says herbs, shrubs and trees. So we will study what are herbs, what are shrubs and what are trees, and further what are climbers in this chapter. So activity 1 हम करेंगे. Look closely at the stem and branches of plant much smaller than you, plants that are about your size and plants which are much taller than you. तो हमें क्या करना है? Let's imagine we are going to a park and there will be so many plants. कुछ पौधे ऐसे होंगे जो हमसे छोटे होंगे. देयर विल बी सम प्लांट्स विच आर ऑफ द सेम हाइट दैट ऑफ अस, एंड देयर विल बी सम प्लांट्स विच आर मच हायर देन अस. तो हमें क्या करना है, अब हमें उनको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स. विल ट्राई टू आइडेंटिफाई देम एंड विल ट्राई टू डिफ्रेंशिएट अमंग देम ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम and on the basis of the branches. तो हमको क्या देखना है कि उसका स्टेम ग्रीन है या टेंडर है, थिक है या हार्ड है, एंड ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं. आर दे अपेयरिंग एट द बेस ऑफ द स्टेम और दे आर अपेयरिंग मच हायर ऑन द स्टेम. इन 2 कैटेगरी पे विल डिवाइड देम. और इसी तरीके से देन वी विल आइडेंटिफाई दे फॉल इन विच कैटेगरी. ईदर दे आर herb or tree or they can be shrub or they can be climbers. ठीक है. तो हम करेंगे. अब इन्होंने 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए किए हैं, टमाटो, मैंगो एंड लेमन. टमाटो का जो प्लांट होता है दैट इज शॉर्टर देन यू. उसकी जो हाइट होती है, आप खड़े होंगे उसके साथ में, तो यू विल फाइंड द हाइट इज लेस देन यू. एंड
द स्टेम इज वेरी टेंडर, आप उसको ऐसे मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाता है, दैट इज नॉट वेरी हार्ड. सो इस तरीके के प्लांट जो होते हैं वो हर्ब होते हैं. टोमेटो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ब. देन मैंगो, इफ यू स्टैंड बिसाइड अ फुल ग्रोन मैंगो, अगर आप छोटे से किसी पौधे के पास खड़े होंगे तो नहीं, इफ यू स्टैंड beside a full grown mango tree, you will find that the tree is much taller than you, okay, and the stem is very thick and hard, and the branches, you will see the branch appear much higher on the stem. पहले बहुत बड़ा सा ऐसे तना खड़ा हुआ है, स्टेम खड़ा हुआ है, और ऊपर जाके फिर वो ब्रांचेस निकलती हैं और वो बहुत डेंस ट्री होता है. ठीक है, सो ट्री होता है. इस टाइप के जो प्लांट होते हैं दे आर कॉल्ड ट्री. देन लेमन. लेमन जो प्लांट है उसकी जो हाइट है दैट इज स्लाइटली टॉलर देन यू. ठीक है, आपकी जो हाइट होगी उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, मोर और लेस इक्वल टू यू. अगर आप थोड़े टॉल हैं तो आपके इक्वल भी हो सकते हैं. एंड द स्टेम इज हार्ड बट द ब्रांचेस अपीयर एट द बेस ऑफ द स्टेम इटसेल्फ. यानी कि स्टेम है, स्टेम हार्ड भी है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा सा स्टेम है और ऊपर जाके ब्रांचेस हैं. स्टेम थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर है और तभी उसके ब्रांचेस निकल आई हैं. सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज shrub. तो 3 examples have been done for you. Similarly, you need to do more examples. You can see a plant of guava, a plant of papaya. You can see a plant of pomegranate. बहुत सारे plant आपको ऐसे मिलेंगे which you can identify, which you can differentiate on these 2 bases. First thing, on the basis of the stem, type of stem, it's thick or it's hard or it's green or it's tender, and on the basis of the branches, where the branches are appearing. Okay, so we are moving ahead. A is herb. तो आप देख पा रहे हैं इन्होंने दिखाया कि वो ग्रीन होता है, उसका जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन होता है, और ब्रांचेस देख रहे हैं कोई अलग से ब्रांचेस नहीं निकली. एक स्टेम है उसके ऊपर ही छोटे छोटे आप उनको ब्रांचेस भी क्या बोलेंगे, दे आर जस्ट पेटियोल ऑफ अ लीफ. एक तरीके से डायरेक्ट लीफ अटैच है. उसके बाद श्रब है, ये श्रब है, स्टेम हार्ड भी है, बट जो ब्रांचेस हैं वो स्टेम पे नीचे से ही स्टार्ट हो जाती हैं. और सी में आप देख पा रहे हैं ट्री, पहले एक लंबा सा स्टेम है जिसके ऊपर कोई ब्रांच नहीं है, एक हार्ड थिक स्टेम है, और ऊपर जाकर उसमें फिर ब्रांचेस निकल आती हैं एंड द ट्री बिकम डेंस. तो इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई. सो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस. ठीक है, तो हर्ब्स कौन से होते हैं, जिनका स्टेम ग्रीन होता है. आप पहले तो कलर से ही देख सकते हो, उसका स्टेम ग्रीन होगा. दूसरा, आप उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे तो यू विल फाइंड, आप उसको मोड़ सकते हो उसके स्टेम को, स्टेम बहुत ही टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, और उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं हर्ब. फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है श्रब. श्रब कौन से प्लांट्स होते हैं, जिनका स्टेम हार्ड होता है बट थिक नहीं होता है. स्टेम हार्ड का मतलब क्या है कि स्टेम ग्रीन नहीं है, आप उसको एकदम से मोड़ेंगे तो स्टेम मुड़ेगा नहीं है, तो वो टूट ही जाएगा. सॉफ्ट नहीं है, टेंडर नहीं है, हार्ड है, बट बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, थिक नहीं है. ओके, और उनके जो ब्रांचेस हैं दे कम आउट नियर द बेस. स्टेम है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर स्टेम दिखेगा और तभी उसके ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी. सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है ट्री. ट्री कौन से प्लांट होते हैं, जो बहुत टॉल होते हैं और उनका बहुत ही हार्ड और थिक ब्राउन कलर का स्टेम होता है. ब्राउन कलर का स्टेम का क्या मतलब है कि वो हार्ड स्टेम है, एक के ऊपर एक ऐसी लेयर बनती जा रही है स्टेम की. स्टेम इज वेरी हार्ड एंड थिक एंड ब्राउन इन कलर, एंड द ब्रांचेस अपीयर इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड. तो जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ऊपर जाके निकलती हैं ग्राउंड से. सो देयर आर प्लांट्स विद वीक स्टेम एंड दे कैनॉट स्टैंड अपराइट एंड दे जस्ट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. बेल जिसे बोलते हैं, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. बट बेल एक होती है, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है,
they are creepers because they always spread on the ground. But there are some plants which take support of neighboring structure and they climb up. So they are called climbers, like money plant, like grapes. So these are climbers. When we give support to them, then they climb up. And these plants are different from herbs, shrubs, and trees. Like their stem is very weak, so you cannot say that this is herb. No, the stem is weak, the stem is green even, but they are not herb. They either they will be climbers or the creepers. Why? Because they have other characteristics also. Creepers are the plants with weak stem and they cannot stand upright, so they just spread on the ground. But climbers, their stem is also weak, they also cannot stand upright, but when we give support to them, they move up taking support of other plant or any other kind of support. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any two plants, shrub, herbs or creepers growing in your school or house. That you need to do. Then moving ahead, 7.2. Now in this we will study about stem. हम क्या करने वाले हैं, हम एक ग्लास लेंगे, उसको 1/3 पानी से भर देंगे. We'll add few drops of red ink to the water and then we cut the base of the stem of the herb. एक herb का stem काटेंगे और उसको ग्लास में रख देंगे. And then we will observe it the next day. What will happen? What will be the color of the stem and the color of the leaves? So we will observe it the next day. Do any of the parts of the herb appear to have red color? Wow, magic! हमने तो प्लांट को कट करके डाला था, रेड कैसे हो गया? कौन सा प्लांट, कौन सा पार्ट उस हर्ब का रेड हुआ? स्टेम रेड हुआ या लीफ रेड हुई? कुछ हुआ ऐसा? यस, लीव्स उसके रेड हो जाएंगी. यू विल सी अ चेंज इन कलर. सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम. है ना, हमने इंक तो पानी में मिलाई थी, ऊपर कैसे रेड कलर चला गया? इट मीन्स वाटर मूव्ड अप. In other words, we can say that stem conduct water. ठीक है, तो stem ने जो ink वाला पानी था वो ऊपर conduct कर दिया. Just like the red ink, minerals dissolved in water also move up in the stem along with the water. ठीक है, हम जब पौधों में पानी देते हैं तो हम ऐसा तो नहीं करते ना, पत्ती को अलग से पानी दे रहे हैं, स्टेम को अलग से पानी दे रहे हैं, फ्लावर को अलग से पानी दे रहे हैं. So stem conduct the minerals and water present in the soil. ये फिगर 7.6 में इन्होंने दिखाया कटिंग द स्टेम. जब आप स्टेम को कट कर रहे हो और जब आप कट करोगे तो यू कैन सी इट इन द माइक्रोस्कोप. एक एनलार्ज व्यू अगर आपको देखे तो इस टाइप का दिखता है कि आपको स्टेम के चारों तरफ ऐसे होल नजर आएंगे. द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम. जो भी पार्ट स्टेम से अटैच है उन सब में प्लांट के जो भी पार्ट्स प्लांट के अटैच है स्टेम से, उन सब प्लांट्स में बी इट फ्लावर, बी इट लीफ, मिनरल्स और वाटर पहुंच जाते हैं. कैसे? थ्रू स्टेम. ओके. उसके बाद पहेली ने एक एक्टिविटी की. व्हाट शी डिड, शी पुट वन ब्रांच विद अ वाइट फ्लावर इन अ वाटर इन ग्लास ए. 3 ग्लासेस लिए उसने, ए, बी और सी. ए के अंदर पानी डाला, बी में पानी डाला और सी में पानी डाला. ए के अंदर जब उसने पानी डाला तो उसने रेड इंक डाल दी उसके अंदर और उसके अंदर एक फ्लावर, वाइट फ्लावर वाली ब्रांच रख दी. फिर उसने बी और सी, 2 बच गए हमारे पास. उसने क्या किया, उसने बी वाला जो ग्लास है उसके पानी में रेड इंक डाल दी और सी वाले के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक डाल दी और एक ब्रांच ली जिसके ऊपर वाइट फ्लावर है और उसको बीच में से काट दिया और उसी ब्रांच का आधी ब्रांच बी में डाली और आधी ब्रांच सी में डाली. ठीक है, तो अब ए है ग्लास ए, ग्लास बी, ग्लास सी. ग्लास ए में रेड इंक है और एक ब्रांच है जिसके ऊपर वाइट फ्लावर है. ग्लास बी में भी रेड इंक है बट उसके अंदर आधी ब्रांच है, एक ब्रांच है जिसका आधा पोर्शन है
और एक फ्लावर अटैच है वाइट कलर का। ग्लास सी है जिसके अंदर वाटर है और उसके अंदर ब्लू इंक है, और आधी ब्रांच है सेम फ्लावर की जिसकी आधी ब्रांच बी में है। ठीक है, ये उसने एक्टिविटी की और उसको एज इट इज छोड़ दिया। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक? जो ए में है वो कैसा हो जाएगा, बी में है वो कैसा हो जाएगा फ्लावर, क्योंकि जो फ्लावर बी में है वो तो आधा बी में और आधा सी में है। सो व्हाट विल हैपन, ए ग्लास ए में तो इट इज क्लियर टू अस नाउ दैट स्टेम कंडक्ट वाटर। वाटर के अंदर ही इंक है, रेड कलर की इंक है, सो द स्टेम विल कंडक्ट इंक ऑल्सो एंड द वाइट फ्लावर विल बिकम रेड। नाउ इन बिग बी, ग्लास बी जो हमारा है उसमें क्या होगा और ग्लास सी जो है उसमें क्या होगा। तो जो सेकेंड फ्लावर उसमें क्या होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट। देन कमिंग नेक्स्ट 7.3 इज लीफ। लुक एट लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। ओके, तो आप जब बाहर निकलते हैं, आप ट्री को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप लीफ को भी देखिए। हर पौधे की, हर ट्री की लीफ का साइज, स्ट्रक्चर अलग होता है। जनरली कलर आपको बहुत कम अलग मिलेगा। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल, सम आर रेड इन कलर एंड सम आर येलो इन कलर एट सम स्टेज। लाइक ग्रीन है बट वो जब झड़ने वाली है तो येलो हो गई है, ब्राउन हो गई है, दैट इज स्टेज ऑफ द लीफ, राइट। तो वो दैट इज नॉट द कलर ऑफ द लीफ, दैट इज कलर चेंज ड्यू टू डिफरेंट स्टेज ऑफ द लीफ। एक ही ट्री पे कुछ लीव्स अलग कलर की हैं और कुछ लीव्स अलग कलर की हैं। तो एक तो बात हो गई कलर की, उसके बाद साइज। छोटी लीव्स होती हैं, तुलसी के पत्ते की जो लीफ होती है, इफ़ यू कंपेयर दैट लीफ टू अ पीपल लीफ और टू अ मैंगो ट्री लीफ, the size is different and the shape is also different. So how are they attached to the stem? So the part of a leaf by which it is attached to the stem, that is called petiole. आप लीफ को जब तोड़ते हैं तो लीफ का एक पार्ट होता है, उसके पीछे एक छोटे सा निकला होता है, that is called petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. Okay, now we will see, do leaves have signatures? So we'll do activity 3. What we will do, we will take a white sheet of paper or you can take any sheet of your notebook. उसके नीचे हम एक लीफ लगा देंगे और फिर अपनी पेंसिल से हम उस पेपर को ऐसे रब करेंगे, रब साइड वे, साइड से उसको टेढ़ा करके और ऐसे डिश 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 ऐसे टिप, पेंसिल के टिप से उसके ऊपर रब करेंगे। उसके बाद जब आप हटा देंगे, व्हाट विल यू सी, यू विल सी इम्प्रेशन ऑफ लीफ, है ना। तो आपको जो ये पतली पतली लाइनें दिखाई देंगी लीफ की, दैट इज कॉल्ड वेन। और जो बीच में एक थिक वेन दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड मिडरिब। तो ये फिगर 7.1 में वी कैन सी लीफ वेनेशन, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। ये दो टाइप के वेनेशन इन्होंने दिखाए हैं। इस टाइप का अगर होता है, ये वेनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रेट्रिकुलेट। और अगर इस टाइप का स्ट्रेट, ये लंबी लीव्स में होता है, इस टाइप का अगर है उनका वेन्स का डिज़ाइन, सो दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल। बट वेन होती क्या है, यही स्ट्रक्चर होता है पतला पतला लीफ के अंदर, दीज आर कॉल्ड वेन। और जो बीच में ब्रॉड वेन होती है, दैट इज कॉल्ड मिडरिब। ओके, सो द डिज़ाइन मेड बाय दीज वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. If this design is net-like on both sides of midrib, then this venation is called retriculate. And if the leaf of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. So if the veins are making a structure of net, then it is called retriculate. And if the veins are parallel to each other, then it is parallel venation. So observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. आपको पत्तियां तोड़ तोड़ के नहीं देखना है, प्लांट पे लगे लगे ही also you can see that. Okay, so draw the pattern and write names of some plants having retriculate and parallel venation. Do it. I always say this thing in my videos. Do all the activities given in your chapters. Don't feel like, no, it will don't come in the exam, so I don't need to do it. No,
दिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. ओके, जब आप खुद एक चीज़ करेंगे, यू विल डू इट बाय योर ओन, देन यू विल गेट वेरी क्लियर. चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको और प्रैक्टिकल आपको समझ आएगा एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सी, व्हाट आई बिलीव, एज अ स्टूडेंट यू मस्ट फोकस ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग, कॉन्सेप्ट. आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. हर चीज़ का जो भी आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. बट समटाइम इट ऑल्सो हैपन्स कि आपको आता है, थिंग्स आर known to you, you know the concept, but you don't know how to express it. So that is also important. आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, लिखना, डायग्राम बनाना, वो भी आना चाहिए. आई एम मेकिंग माई वीडियोज़ यूजिंग NCERT बुक ओनली. दैट इज़ द ओनली रीज़न फॉर दिस. बिकॉज इफ़ आई मेक माई ओन प्रेजेंटेशंस, एक विजुअल इम्पैक्ट आपके उस पर नहीं आएगा. इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम बुक एंड आई एम also teaching from the same book, that will give you an visual impact. Make your concept very clear and second, try to express it. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको अपने आप को पढ़ाओ. ठीक है, अभी आपने लीफ के बारे में पढ़ा, बंद कर दो टॉपिक. बुक से पढ़ा, वीडियो से पढ़ा, कहीं से पढ़ा, अब उसको पोज कर दो वीडियो को. बुक से पढ़ा है तो बुक को बंद कर दो एंड टॉक टू योर सेल्फ. टीच योर सेल्फ, मैंने क्या पढ़ा अभी. कभी कभी होता है ना, पढ़ते जाते हैं और एट द एंड पता नहीं बस कुछ पढ़ा तो था. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी पढ़ा है दैट शुड बी नोन टू यू एंड यू शुड रिटेन इट. तभी यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. टू डू दिस एक्टिविटी एट होम. देन एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हर्ब. इसके लिए हमें एक हर्ब चाहिए. हर्ब कौन से थे याद करो, फटाफट से याद आ जाना चाहिए. हर्ब वो हुए जिनका ग्रीन कलर का स्टेम है, जैसे कि टमाटो. तो आपने एक हर्ब लिया, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लिए और कुछ धागे लिए. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे. यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन फॉर दिस एक्टिविटी. कोई भी आप एक पौधा चूज करेंगे. Enclose the leafy branch of the plant in a polythene bag and tie its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of the empty polythene bag and keep it also in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the bags. What do you see? आपने जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, ऐसे एक पत्ते को थैली में ऐसे बांध दिया. Are there any droplet of the water in any of the bag? Which bag has the droplets? How do you think they got here? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. Okay. Water comes out of the leaf in the form of vapors by a process called transpiration. ठीक है, तो आपने 2 पॉलीथीन बैग लिए, एक को आपने वैसे ही मुंह बंद कर दिया और एक पॉलीथीन बैग के अंदर आपने लीव्स डाली, यानी कि लीव्स को पॉलीथीन बैग से कवर किया और आपने धागे से उसका मुंह बंद कर दिया. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द पॉलीथीन बैग which covered the leaves. Okay, so from where that water droplet have come? From the leaves only, because water comes out of the leaves in the form of water vapor by a process called transpiration. Water release a lot of water into the air through the process. We will learn more about it in chapter 14. But अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ, पानी निकलता रहता है पौधों से फ्रॉम देयर वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ. जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके अंदर से पानी बाहर निकलता रहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तभी हम बोलते हैं ना कि पौधे जहाँ होते हैं वहाँ बहुत ठंड रहती है ना. जो डेंस एरिया होगा जहाँ पे इतने ज़्यादा पौधे होंगे वहाँ का टेम्परेचर कम होगा रिलेटिवली टू द एरिया वेयर देर आर लेस प्लांट्स. दैट इज़ द रीज़न, because plants they release water vapor. So we'll move to activity 5. We would require a leaf, a spirit, beaker, test tube, burner, water, plate and iodine solution for this activity. हमने क्या करना है, हमने एक लीफ को टेस्ट ट्यूब में डाला और उसके ऊपर स्पिरिट डाल दिया और उसको कम्प्लीटली कवर कर दिया लीफ को.
बीकर है, उसके अंदर आधा पानी भरा और सेम टेस्ट ट्यूब उसके अंदर डाल दिया. नाउ हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. आपको ये पता है कि ग्रीन कलर एक सब्सटेंस की वजह से होता है, क्लोरोफिल. जब आपने उस टेस्ट ट्यूब को गर्म किया, स्पिरिट को गर्म किया, तो वो सारा कलर जो है वो बीकर वो जो सारा कलर है वो लीफ के अंदर से बाहर आ जाएगा and it will come out into the spirit of the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in the water. Put it on a plate and pour some iodine solution over it. अब आपने क्लोरोफिल निकाल दिया लीफ का सारा, उसको वॉश कर दिया और उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया. तो what do you observe? Leaves prepared their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this they use water, carbon dioxide from air. This process is called photosynthesis. So photosynthesis में क्या होता है? They use chlorophyll, water from air, moisture है ना, और जो water हम उनको देते हैं, that water and the carbon dioxide from the air, and they make their own food. And in this process oxygen is liberated, oxygen is given out. So the food prepared by leaves ultimately gets stored in different part of the plant as starch. So plants do have starch, but that starch is prepared by themselves. How do we know that leaf has prepared the starch and not received it from another part of the plant? हमें ये कैसे पता कि लीफ ने बनाया है? अब अगर आप बोलो नहीं, लीफ तो नहीं बनाती, स्टेम बनाता है फूड, स्टेम्स बनाता है स्टार्च. Do we have any proof for that? To test this, the above activity can be repeated with a little difference. अब हम same activity करेंगे थोड़ा सा अलग करके. Place a potted plant with green leaves in a dark room for a day or two. Now cover the portion of the leaf of the plant completely with black paper. क्योंकि हमने बोला ना sunlight is required. तो हम एक पौधे को sunlight से डिवॉइड कर देते हैं, उसकी लीव्स को एकदम ब्लैक पेपर से ढक देते हैं और उसको सन से दूर रखते हैं थोड़े दिन के लिए. रिमूव द लीफ कवर्ड इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च. अब आप उसको दोबारा से स्टार्च के लिए टेस्ट कीजिए, यानी कि फिर से आपने अगर ग्रीन कलर उस लीफ के अंदर बचा है तो यू रिमूव द ग्रीन कलर बाय एडिंग इट टू स्पिरिट एंड देन बॉइलिंग द वाटर एंड देन अगेन यू वॉश द लीफ एंड देन अगेन डू द स्टार्च टेस्ट बाय एडिंग आयोडीन सोल्यूशन. सो व्हाट विल यू सी? हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि स्टेम कंडक्ट करता है वाटर को, है ना. हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने एक ग्लास में पानी डाला, उसके अंदर रेड इंक डाला और हब को बीच में से काट के उसके स्टेम को डिप किया, तो वी फाउंड आउट कि कलर चेंज हो जाता है ऊपर लीव्स का और स्टेम का. ठीक है, तो यानी कि जो नीचे लाल पानी था वो ऊपर चला गया. कैसे? थ्रू द स्टेम. सो स्टेम कंडक्ट वाटर, ये हमें पता चल गया. फिर हमने एक्टिविटी करके ये पता कर लिया कि भैया प्लांट में जो फूड बनता है, जो स्टार्च बनता है, वो तो लीफ बनाती है. अब लीफ कैसे बना रही है? लीफ को पानी कहाँ से मिल रहा है? थ्रू द स्टेम, बिकॉज द स्टेम कंडक्ट वाटर एंड लीफ मेक द फूड. इतना हमें पता चल गया. बट स्टेम में पानी कहाँ से आ रहा है? हम तो स्टेम को अलग से तो पानी नहीं देते, हम तो रूट में पानी देते हैं, हम तो मिट्टी में पानी देते हैं. तो स्टेम को पानी कहाँ से मिला? तो अब दिस इज द पॉइंट वेयर द रूट कम्स इन. यहाँ पे रूट का फंक्शन आ जाता है. मूविंग अहेड टू 7.4 विल स्टडी अबाउट रूट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जड़. लुक एट द फिगर 7.13. बूझो डाल रहा है पानी सिर्फ पत्ती पर और पहली डाल रही है पानी पोट के अंदर, यानी कि सॉइल में. तो कौन पानी अच्छे से दे रहा है? सिर्फ पत्तियों को पानी देने से प्लांट को पानी मिल जाएगा? नहीं. कहाँ पे पानी देना पड़ेगा? मिट्टी में, रूट में. ठीक है. सो पहेली इज गिविंग, पहेली इज डूइंग राइट वे. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? सॉइल में कौन सा पार्ट है? लीव्स तो ऊपर है, स्टेम भी ऊपर है. सो ओनली द रूट इज इन द सॉइल. सो वी नीड टू वाटर रूट. In activity 6, we would require 2 pots, some soil, khurpi, basically a tool to dig out the soil.
blade or a pair of scissors and water. Select 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out. कोई भी 2 वीड आपने लिए, कहीं से भी निकाले, उनको आपने डिग आउट कर लिया. बस इतना ध्यान रखना है कि उनकी रूट्स टूटे ना. ठीक है. अब आपने एक वीड को एक पॉट में लगा दिया एज इट इज, और दूसरे वीड की आपने रूट को कट कर दिया और फिर उसको पॉट बी में लगा दिया. अब आपने दोनों को रोज पानी दिया. थोड़े टाइम बाद व्हाट विल यू ऑब्जर्व, कौन सा प्लांट ज़्यादा हेल्दी होगा, रूट के साथ वाला या बिना रूट के साथ वाला? ऑब्वियसली द प्लांट विद द रूट. नाउ वी विल डू एक्टिविटी 7. वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर. ठीक है. हम क्या करेंगे, हम 2 कटोरी लेंगे और उन दोनों के अंदर भीगी हुई वूल रख देंगे. कटोरी के ऊपर वी आर मेकिंग ए सरफेस ऑफ वूल जिसके ऊपर प्लांट कैन ग्रो. उसके बाद हम 3-4 दाने डाल देंगे ग्राम के और मेज के. स्प्रिंकल करते रहेंगे डेली until the sprouts have grown into the young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton wool. अब जब थोड़ा टाइम बाद आप अलग करना चाहेंगे उसको कॉटन वूल से, what will you see? You will see that roots have grown. तो जहाँ पे भी प्लांट को सरफेस मिलता है, सबसे पहले वो अपनी जड़ें मजबूत करता है वहाँ पर. Okay, because root is an important part of the plant. It help in holding the plant firmly in the soil. ठीक है. So it gives strength to the plant. They are said to anchor the plant to the soil. You have seen these are different kinds of stems and leaves. So by now you know that leaves are different of different plants, stems are different, है ना. herb, shrub, tree, उनके stem अलग अलग होते हैं. Leaf का we studied that color is different, then shape is different, size is different. So do we have different type of roots also? Let's study. In activity 8, study figure 7.16a and b carefully. Now look at the roots of the gram plant and gram plants you have pulled out from the cotton wool. Do they look like the roots shown in 7.16a or those in 7.16b? So now you have taken out roots of gram and maize. You compare these roots from this figure 7.16a and b. Do they match? In what way is the root of gram and maize similar? And in what way they vary? There seems to be 2 different types of root, है ना. दोनों अलग अलग लग रही हैं देखने में ही. So we'll go ahead and we'll do activity 9. Go to an open ground where many weeds are growing. जहाँ बहुत सारे weeds हो. Dig out a few weeds, wash the soil off the root and observe them. Do you find there are the weeds that you have dug out have either the kind of root A or B? 7.17 या तो A जैसा होगा या B जैसा होगा, यानी या तो इस तरीके से जैसे 7.17 में दिखाया टैप रूट ऐसे लंबा 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 होगा, या इस तरीके की फाइब्रस रूट होंगी. Fact of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called the tap root and the smaller roots are called the lateral root. Basically there is one main root which is called tap root, and then all other roots are, we can say, just the branches or the fibers coming out from the main root, and they are called lateral roots. Plants with roots as shown in 7.17b, they do not have any main root. All roots seem similar and such roots are called fibrous roots. Separate the weed you have collected into A, those have tap roots, and B, those have fibrous roots. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? So students, by now we have an idea of all the parts of the plant and their functions, right? First of all, we studied about the stem. We divided plants into 3 categories: herb, shrub and tree, on the basis of type of the stem, whether the stem is tender or the hard, the stem is thick, green or the brown. Okay, then we studied about the importance or the function of the stem. We understood that the stem conduct water. It take water from the root take water from the soil, all the minerals
Root take all the mineral and water from the soil and then it pass to the stem. Then stem conduct these minerals and water to all the parts of the plant, to the leaf. Yes, and leaf make its own food by the process of photosynthesis. For that it require water, sunlight and chlorophyll. And then this food, this stored food is transported back to all the parts. Okay, बिकॉज खाना बन गया है, अब खाना चाहिए भी तो सबको. तो स्टेम वी कैन से इट्स ए 2-वे स्ट्रीट. पहले ये पानी के ऊपर लेके जाता है, पूरे जितनी भी हाइट होती है ट्री की वहाँ तक पानी पहुँचाता है, एंड देन अगेन इट टेक आउट वॉट फूड एंड गिव इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. राइट, इतना अभी हमको क्लियर हो गया. हमको इतना क्लियर हो गया कि जो स्टोर्ड फूड है वो फिर स्टोर होता है प्लांट में अलग अलग पार्ट्स में. If you found this video helpful, please like and share the video and subscribe the channel Digital Library.